कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, भगवान महादेव की कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है, फलम वक्तु न शक्नोमि, कथा सुनने का जो फल है, इस फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता। अबे कथा सुनने का फल मिले न मिले उनके बारे में हम भी उनका विस्तार कभी नहीं करते, क्योंकि कथा की एक महिमा रहती है, हर कथा का एक कोई फल रहता है। कोई भी कथा पूर्ण हुई तो इसमें कोई न कोई फल श्रुति रहेगी। भगवान महर्षि वेदव्यास जी की एक रचना रही कि कोई भी कथा पूर्ण हो रही है तो उसका कोई फल है। लेकिन कथा सुनने का फल मिले न मिले, लेकिन कथा श्रवण करके जो अपना जीवन परिवर्तन करते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता। कथा श्रवण कर ली और फल देखने के लिए जाएंगे तो कहां फल देखे जाएंगे? कभी नहीं। सुनने मात्र से नहीं, कथा श्रवण करते करते इसमें से कुछ ग्रहण करें और जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। कथा सुनते रहे पूरा जीवन श्रवण करते रहे। जरूर कथा, जहां तक कथा में बैठे वहां तक मानसिक शांति मिलती है। और कथा में सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि हम 3 घंटे मौन रहते हैं, इसीलिए 3 घंटे की आयु बढ़ती है। मनोविज्ञान ने जाहिर किया है कि जितना व्यक्ति मौन रहता है उनकी आयु में वृद्धि रहती है। तो कथा सांभळ्या પછી संकल्प करू કે मूंगा રહેવું અને અઘરામઘરું વસ્તુ હોય તો મૌન રહેવું। તે માણસ બોલ્યા વગર રહી શકતો જ નથી, બોલતો જ રહે। ખબર નહીં કારણ હોય તો બોલ મળે, ન કારણ હોય તો બોલે, જાગતો હોય તો બોલે, ઘણા તો ઊંઘમાં એટલું બધું બોલે ને કે એના રૂમમાં હુવા આપણે રાજી ન થઈ। આખી રાત બબડતો ને તો દાંત કકડાવતો હોય। ઘણા લોકો દાંત કકરાવે આખી રાત, આપણે તો કે ભૂત થયું શું? આ જીવન પર્યંત બોલતો રહે છે। તેથી કથા સાંભળ્યા પછી આપણે નિર્ણય લઈ કે વધારેમાં વધારે આપણે મૌન રહીએ। અને અનેક વાર મેં કહ્યું છે કે ભગવાન શિવજીનું શ્રેષ્ઠ કોઈ વ્રત હોય તો એ મૌન છે, અને જીવનમાં અઘરામઘરી વસ્તુ હોય તો એ મૌન રહેવું તે છે। મૌનનો પહેલો લાભ છે કોઈ સાથે કલેશ ન થાય। મૌનનો બીજો લાભ છે કોઈ સાથે મન દુઃખ ન થાય। મૌનનો ત્રીજો લાભ છે કોઈને ખોટું લાગે એવી સંભાવના જ ન બને। અને જે કાંઈ કામો બગડ્યા છે એ બોલવાથી બગડ્યા છે। આખું મહાભારત ઊભું થયું આંધળાના આંધળા હોય એટલામાં ખાલી। કેટલી મોટી ઘટના એક શબ્દને કારણે। તેથી શબ્દ સંભાળ કર બોલીએ, શબ્દ કો હાથ ન પાઉં। એક શબ્દ ઔષધ કરે, એક શબ્દ કરે ઘાવ। સમાજમાં લોકપ્રિયતા મેળવી હોય તો સોના ચાંદી હીરા મોતી સુંદર બ્રાન્ડેડ કપડે બ્રાન્ડેડ બૂટ ચપ્પલ પહેરવાથી ન મળે, પણ જેની વાણીમાં વિવેક હોય ને જેની વાણીમાં મધુરતા હોય સમાજમાં ગણેશની જેમ પૂજાય। ઘરમાં પણ તેનું માન સન્માન બહુમાન રહે છે। કથા સાંભળ્યા પછી નક્કી કરવાનું છે બોલતા આવડીએ તો જ બોલીએ, નહીતર મૌન રહીએ। હંમેશા કથામાં કહેતો રહું છું કે બીજા નિયમો ધારણ ન કરો, પણ કથામાંથી 5 નિયમો ધારણ કરવા। એક તો વધારેમાં વધારે મૌન રહેવું। હવે હું ગુજરાતી બોલવાની થોડી પ્રેક્ટિસ કરું છું, કારણ કે લગભગ હિન્દી બોલી કરીને મારું ગુજરાતી ખરાબ થઈ ગયું। બોલો ગુજરાતી બોલો તો મારે ચંદુભાઈ મને કહ્યું હતું બાપુ મારી કથા ગુજરાતીમાં કરવી પડશે। મેં કીધું હવે જેટલો થાય એટલો પ્રયાસ કરી, કારણ કે કોરોના કાળે બીજું કાંઈ ના શીખવું, મને કોરોના કાળે હિન્દી બોલતા શીખવાડી દીધું। બધી હિન્દી કથાઓ। એમાં હિન્દી કથાથી લાભ એ થયો કે ગુજરાત બહાર વધારે પડતી કથા થવા લાગી। આ તો વર્ષે દિવાળી પછી ગુજરાતમાં જેટલી કથા છે એટલી જ ગુજરાત બહાર કથાઓ છે। એનું કારણ હિન્દી ભાષા છે। અને ગુજરાતમાં જે મહાદેવના ભક્તો છે તેના કરતા હજારો લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તો ગુજરાતની બહાર છે।
આમો કેમેરો હોય ને એટલે વચ્ચે તે હાલો તમે આવે એટલા માટે તમને રોક્યા. વચ્ચે જ આવે બધા માણસો, આમાં તો ક્યાં કોઈ આવે જ છે. આ જો બોલા વગર રહ્યા રહે જ નહીં, બોલા વગર બોલવું જ પડે. કારણ કે મોટા મોટું અઘરામાં અઘરું જીવનમાં કોઈ કામ હોય તો એ છે મૌન રહેવું. તે આ પ્રત્યક્ષ દાખલો બાનો આપણે બોલ્યા વગર રહે જ નહીં. ઘરમાં તમે જો માણસને આમ બોલવાની ના પડ્યું ને તો એ વધારે બોલશે. તો પહેલો નિયમ ધારણ કરો, વધારેમાં વધારે મૌન રહેવું. અને પોતાની જાતને સમજાવવી પડે. મોઢામાં ગમે એટલી ખંજવાળ આવે તો બોલવું નહીં. બીજો નિયમ ધારણ કરો, વધારેમાં વધારે શાંત રહેવું. માણસ અશાંત હોય છે. જે માણસ અશાંત રહેતો હોય છે તે અશાંતિનું પહેલું પ્રતીક છે તેના મુખની જે ઉર્જા હોય એ ઉર્જા જતી રહે છે. બ્યુટી પાર્લરમાં જાયા વગર ને મેકઅપ કર્યા વગર તેજસ્વી દેખાવું હોય તો પ્રસન્ન રહેવું અને શાંત રહેવું. જાવું છું બ્યુટી પાર્લરમાં. મારા સુમનબેન પાછા કે આ ક્યાં તમે ના કરવા લાગી, આમનું કામ જ બ્યુટી પાર્લરનું છે મારે. કાલે એમના મેડમ પણ આવ્યા હતા, નીલીભાઈના બહેન. મને તો બ્યુટી પાર્લરનો પરિચય ન હોય, કારણ કે આપણને કંઈ બ્યુટી પાર્લરમાં જવાનો કોઈ અવસર ન મળે. એટલે પછી ખબર પડી કે આ તો અમદાવાદના મોટા બ્યુટી પાર્લરવાળા બહેન હતા. એનું મોટું નામ હતું, મોટા હીરો હિરોઈનને તૈયાર કરે એવું મોટી બ્યુટી પાર્લરમાં એમના દીકરા પણ હેરસ્ટાઇલના સ્પેશિયાલિસ્ટ હતા. પછી કથા પૂરી થઈ પછી મને ખબર પડી કે આ બધું તો આમ નામ ગયું. પણ આપણે ખૂબ એમને તાલીઓડે વધાવીએ છીએ કે કાલ કથામાં આવ્યા હતા. તો શાંત રહેવાનો પ્રયાસ કરીએ આપણે છે. ત્રીજો નિયમ, મીઠી વાણી બોલો. તમે જો જીવવાની મજા આવે. મીઠી વાણી બોલનારને ડાયાબિટીસ ન થાય, કડવું બોલનાર ન થાય. તમને જો થઈ હોય તો સમજી લેજો કે તમે ઝપટ બોલાવી જ છે, તમે બોલવામાં પાછા વેળા જ નથી. એટલે મધુર વાણી બોલવી. ચોથો નિયમ, દ્રઢ સંકલ્પ કરો. કોઈની ખરાબ વાત કરવી પણ નહીં, કોઈની ખરાબ વાત સાંભળવી પણ નહીં. દ્રઢ સંકલ્પ કે આજથી પછી નહીં. કોઈ કરે તો કે હું ભાઈ પગે લાગુ તને બે જાન દીધું. અને પાંચમો નિયમ, શુદ્ધ શાકાહારી, નિર્વ્યસની રહેવું. બસ. આમ તો ઘણા બધા માણસમાં 36 ગુણો હોવા જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવત ગીતા 36 ગુણો માણસમાં અનેક પ્રકારના ગુણ, પણ એ બધા આપણા ન આવે. એટલા 5 ગુણોનું પાલન કરવાથી ઘણું બધું સારું થઈ શકે છે. વાણીમાં વિવેક માણસને લોકપ્રિયતા અપાવે છે. ભાષામાં વિવેક હોવો જોઈએ, શબ્દોમાં વિવેક હોય. વચન વિવેકી જે નર ને નારી પાનબાર. જે નર નારી પાનવા બ્રહ્માદિક લાગે વચન વિવેકીને જે નર નારી પાનવા બ્રહ્માદિક લાગે જઠારથ વચનની સારણે જાણી રે. જઠારથ વચનની સારણે જાણી રે. કરવું રે હોઈ તે
વચનમાં વસ્તુ છે પુરાણ પાન બાઈ વચન છે ભક્તિ કેરું અંગ વચનમાં વસ્તુ છે પુરાણ પાન પાય વચન છે ભક્તિ કેરું અંગ ગંગા સતી તો એમાં જ બોલિયાને ગંગા સતી એમાં જ બોલિયાને વચન પાલકનો કરવો સંગ વચન વિવેકી જે નર નારી પામવા બ્રહ્માદિક લાગે ને બ્રહ્માદિક લાગે બ્રહ્માદિક લાગે કથા સાંભળતા જે પોતાના જીવનને પરિવર્તન કરે છે તેનું જીવન કંઈક વિશેષ બને છે. કથા શા માટે સાંભળે? જ્યાદાતર લોકો એવું સમજે કે કથા સાંભળવાથી પુણ્ય મળે. મળતું જ હોય. ભગવાન વ્યાસે કહ્યું છે કે ભાઈ કથાનું શ્રવણ કરવાથી અશ્વમેઘ સહસ્ત્રાણી વાજપેયી શતાની ચ આવા મોટા મોટા પુણ્યો મળે. દુનિયાના બધા તીર્થયાત્રા કરીને જે પુण्य મળે એ कथा सांभळवाથી पुण्य મળે. विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलेगा. ऐसा बहुत सारा महात्म्य शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है. लेकिन कथा सुनते सुनते कुछ न कुछ ऐसा ग्रहण करिए कि मेरे जीवन का परिवर्तन होना चाहिए. असवारे के मैंने कोई पूछी रही तो आज नो मानस खुश केम ने रही सकतो. आज जाजे वगे मानस जो तो मोटा बधाने पड़ेला ज होय. કાં પડેલા મોઢા હોય કાં ચડેલા મોઢા હોય, નકર હડેલા તો હોય જ. મેં કહ્યું માણસ ખુશ એટલા માટે નથી રહી શકતો કારણ કે એ પોતાની ભૂલોને ભૂલતો નથી અને બીજાની ભૂલોને ક્ષમા કરતો નથી. એટલે માણસ ખુશ રહી શકતો નથી. અને પ્રસન્નતા એ આપણી ઓળખાણ છે. ચહેરા પર પ્રસન્નતા ન હોય તો ભગવાને આપણને ગમે તેટલું રૂપ આપ્યું હોય તો પણ આપણે સુંદર દેખાઈએ નહીં. પણ ભગવાને ભલે સુંદરતા થોડી ઓછી આપી હોય પણ ચહેરાની પ્રસન્નતા હોય તો માણસ આપણને વહાલો લાગે, દેખાવડો લાગે. ब्रह्मा ने कहा नारद आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का आप श्रवण करिए. हे नारद, दक्ष पुत्री सती महादेव का आराधन किया, कठिन तपस्या की, ब्रजेश नगर में आगमन हुआ और नगरवासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया क्योंकि तप करके आई है. और हमारी एक सनातनी परंपरा थी, अब तो लुप्त हो गई. पहले तो माता पिता और कोई वयोवृद्ध यात्रा करके वापस आते थे अपने गांव में, तब सभी गांव वाले उसका आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसका स्वागत करते थे. गुजराती में कहो तो हामैયું करता था. एवो एक समय હતો. इसी सभी नगरवासियों ने सती का बहुत बड़ा आदर किया, पुष्प की वृष्टि की, पुष्पों से स्वागत किया, जय जयकार किया. और माता वीरणी प्रसन्न हुई और आदर और भक्ति के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, विवेक सभर सती ने माता पिता को कहा कि आपके आशीर्वाद से भगवान महादेव मुझे मिले. और स्वयं शिव जी ने
मेरे साथ विवाह करने के लिए अनुमति दी। और वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी पुत्री सती का विवाह के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए दक्ष महाराज को प्रेरित किया। और हम सभी जानते हैं भगवान शिव जी के प्रथम विवाह दक्ष पुत्री सती के साथ हुआ है। इस कथा का विस्तार शिव महापुराण ग्रंथ में है। इनमें भी बहुत सारी बोधात्मक कथा है, बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हैं। गर्गाचार्य महाराज पधारे, देवगुरु बृहस्पति जी आए, सप्त ऋषि पधारे। नारद के बिना तो कोई कार्य संभव नहीं है। और विश्वकर्मा जी वहां पधारे और दक्ष पुत्र सती की विवाह पत्रिका सुंदर निर्धारित की। और विवाह पत्रिका लेकर सप्त ऋषि गर्गाचार्य नारद जी सब मिलकर भगवान महादेव के पास कैलाश गए। यहाँ दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा, नगर तो वास्तविक सुंदर है ही, लेकिन प्रजेश नगर था। प्रजापति दक्ष जहां विराजते हैं वहां कई वस्तु की कमी हो, लेकिन जो सुंदर है उनमें भी सुंदरता में वृद्धि करे। और विश्वकर्मा को आज्ञा मिली, बड़े बड़े द्वार, सुंदर मंडप, सुंदर व्यवस्था सुविधा, नगर की सुंदरता में वृद्धि करने लगे। और ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में एक सूत्र है, सुमन बेन। बहुत समय पहले मुंबई में हमारी एक बहन त्रिशला बहन परम शिव भक्त हैं, उसको मैंने पूछा था कि आप क्या करते हो, तो कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करते हूँ। लोगों को सुंदर बनाने का काम करती है। तो उसने बहुत सुंदर सूत्र दे दिया, बाबूजी सभी लोग सुंदर तो है ही, भगवान ने सबको सुंदर ही बनाया है, लेकिन जो भगवान ने सुंदरता दी है, इस सुंदरता में मैं वृद्धि करने का काम कर रही हूँ। यही विचार क्रांति। हर कोई व्यक्ति सुंदर है। कब सुंदर है? जब अरिसे के सामने हम खड़े हैं तो हमारे मन में क्या होता है, हमारे से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं है? सबके मन में वही होता है। और जब छठी के दिन विधाता लेख लिखने के लिए आते तो बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ लिख कर जाते, कान में कह कर जाते कि तुझसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वो जीवन पर्यंत वो रहता है मन में कि मुझसे सुंदर कोई नहीं। बाकी तो આપણને ખબર હોય કે આપણે કેવા સુંદર છે, પણ એક મનમાં વહેમ હોય છે હર કોઈ વ્યક્તિને। इसलिए विश्वकर्मा जी ने प्रजेश नगर की सुंदरता में वृद्धि की है। और यहाँ भगवान महादेव पहुंचे, महादेव के पास पहुंचे सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी और बृहस्पति देव सभी आए। भगवान शिव जी पत्थर की शिला पर विराजमान थे। शिष्य मंदाग्नि धारी भाल चंद्र त्रिलोचना पंचवर प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल धूक। ऐसे भगवान शिव जी का एक दिव्य रूप है महादेव का। जोगी जटिल नकाम अमंगल, जिनका रूप विचित्र है लेकिन स्वरूप सबसे सुंदर है। कोई भी व्यक्ति बाह्य कितना सुंदर दिखाई देता है ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन भीतरी कितना सुंदर है ये बहुत महत्व की बात है। बाह्य सुंदरता से कोई सुखी नहीं हो सकता, लेकिन भीतरी सुंदरता वो स्वयं सुखी हो सकता है, दूसरों को सुख दे सकता है। लेकिन हमारी सबकी दृष्टि हम बाह्य सुंदरता को ही देखते हैं। ये भी आवश्यकता तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा है भीतरी सुंदरता। और हमारे परम पूज्य परम वंदनीय चिंतनकार गुणशाह ने सुंदर एक पुस्तक लिखा है, भीतर भणीनी यात्रा। बाहरनी यात्रा तो घनी बधी करी, गोकुल मथुरा मंदरावन गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, सप्त गंगा में स्नान किया, भारत देश के 4 धाम की यात्रा की, हिमालय पहाड़ के 4 धाम की यात्रा के, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। कोई भी यात्रा हमने छोड़ी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कोई यात्रा है तो भीतर भणीनी यात्रा, अपने स्व की यात्रा। स्व की यात्रा कौन कर सकता है? जिनको एकांत प्रिय है,
एक का भी अंत। एकांत मतलब अकेला रहना है नहीं, आप स्वयं को भी भूलने का प्रयास करें, उसको एकांत कहा जाता है। अपने स्वयं को भी भूलने का प्रयास करें, वो ध्यान का द्वार है। ध्यान मतलब आंखें बंद करके लंबी लंबी श्वास, ये तो क्रिया है वहां पहुंचने के लिए। और मैंने बहुत बार कहा है, ध्यान ये महादेव की श्रेष्ठ उपासना है। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, वो निरंतर जाप करते हैं, अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का स्तोत्र का पारण करते हैं, वो लंबे लंबे पूजा करते हैं, अभिषेक करते, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन वास्तव में देखे तो भगवान शिव जी ध्यान के देवते हैं। ध्यान नित्यम महेशम चंद्रा बसंतम। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा पीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं इसलिए भगवान महादेव की जो परंपरा है वो ध्यान की परंपरा है। जिनको ध्यान परंपरा में प्रवेश करना है उनके लिए पहला नियम है सात्विक आहार करें और अपने घर में बनाया हुआ ही भोजन करें। तो थोड़ा सा सुबह में थोड़ा जल्दी उठिए, बहुत तो जल्दी नहीं कहता, लेकिन जितना हो सके इतना थोड़ा जल्दी उठ जाइए। लंबे समय तक आजकल निरंतर जाहिरात हो रही है कि 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, 9 घंटे सोना चाहिए। तो मुझे रावण का भाई बन जाओ, सोइए रहो। ऐसा नहीं होता, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है। महापुरुषों की नींद 3 घंटे में पूर्ण हो जाती है। जागरूक पुरुषों की बहुत लंबी नींद नहीं होती। जो मंद बुद्धि है वो लोग बहुत लंबा लंबा सोते हैं, उसको नींद बहुत आती है। और खर्राटे बोलाना वो सबसे बड़ा खतरनाक रोग है। આપણે ગુજરાતીમાં નસકોરા બોલાવે, કેવા નસકોરા મારા આજુબાજુ વાળા સાંભળે, કૂતરા ભણવા લાગે આવા નસકોરા બોલાવે, કૂતરા ભસવા લાગે આ હું એટલો અવાજ। और सुबह में उठते समय नींद खुल गई, तुरंत बिस्तर छोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शरीर के एक एक तंतु को जागने दीजिए। धीरे धीरे, पूरा शरीर नहीं जागता, पहले आंख खुलती है, बाद में धीरे धीरे शरीर जागता है। बिस्तर में उठने की एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन हम उससे परिचित नहीं हैं। और दूसरी बात, रात में कभी उठें तो तुरंत बड़ा लैंप नहीं करना चाहिए, आंख को बहुत नुकसान करता है। छोटी सी लाइट करें रात में, क्योंकि पूरी आंख अंधकार में बंद है, और तुरंत बड़ी लाइट हो गई तो आपको आंख को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। रात में कभी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा बॉम्ब है। आजकल मोबाइल हर व्यक्ति अपने पास रखता है। नहीं, जब समय है तब रखिए, बाकी नहीं दूर रख दीजिए थोड़ा सा। और निरंतर हाथ में ही रखना चाहिए मोबाइल। और हमारे पुरुषों से बुद्धि जी बहन है, कभी हाथ में मोबाइल नहीं, कोई होगी
ज़्यादातर उसके पर्स में मोबाइल रहता है, हम लोग हाथ में रखते हैं और यहाँ जेब में रखते हैं। कितना नुकसान करता है मोबाइल। आजकल चिंतनकार उस पर चिंतन करते हैं कि ये बड़ा खतरनाक एंजाइटी का कारण है, चित्त भ्रमित करने का कारण है। और एक बात कहूँ तो बहुत सोशल मीडिया बहुत नहीं देखना चाहिए, ठीक थोड़ा सा देख लिया। और कहीं लोग निरंतर इसमें, और जीवन के मूल्यवान समय का चोर उसको मोबाइल कहा है। बहुत मूल्यवान समय जीवन का, ये मोबाइल कितने घंटे बीत जाते पता नहीं होता। इसे थोड़ा सा दूर रहिए, आपके लिए कुछ सोचें। लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं, और बहुत सारी बहनें भी ऐसी हैं, बच्चे को चुप रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं। नहीं, बहुत बड़े खतरनाक बात है। और सुबह में बिस्तर में आंख खुल गई, जितने स्तोत्र कंठस्थ हैं सभी बोल लीजिए, एक भी स्तोत्र कंठस्थ नहीं है। आज मुझे कोई पूछ रहे सुबह में बहन कि बिस्तर में सोए सोए, आप ही पूछ रहे थे कि बिस्तर में सोए सोए स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? क्यों नहीं, आदर के साथ कर सकते हैं। हमारी तो नियम है, शाम का रात को मैं सोता हूँ 10 साढ़े 10 बजे, 10 और 11 के बजे बीच में सो जाना चाहिए, बस इतने। और जब हम आंख बंद करते हैं तब जितने स्तोत्र कंठस्थ है सभी स्तोत्र बोलकर ही मैं सोता हूँ। और कभी हमारे सभी स्तोत्र पूरे भी नहीं हुए, तब तो नींद पूरी हो जाती थी। और सुबह में आंख खोली फिर स्तोत्र, इतनी ऊर्जा के साथ बिस्तर को छोड़ो, ऐसा लगना चाहिए कि कोई योगी 12 साल तप करके उठा है, ऐसे सुबह होनी चाहिए हमारे। लेकिन सोने का ज्ञान नहीं, जागने का ज्ञान नहीं, नहाने का भी ज्ञान नहीं। बहुत गर्म पानी से नहाने वाला व्यक्ति जल्दी वयोवृद्ध हो जाएगा। गुजराती में કહું તો હુફાળા પાણીથી નવાય, ગરમ પાણીથી ન નવાય, ધુમાડા નીકળતા એવા પાણીથી ન નવાય। અને ક્યારેય તમે તાપમાંથી આવ્યા છો તો જલ્દી પાણી ન પીવાય, જલ્દી ઠંડા પાણીથી મોઢું પણ ન ધોવાય, આંખોને નુકસાન કરે। આ બધું જ્ઞાન વાંચવાથી આવે। અલગ અલગ પુસ્તકોનું વાંચન કરવું જોઈએ। પહેલું રાતે કાલે મેં જોયું હોય, પછી ભલે વાનગીવાળું, હા, ચૂલા વગરની વાનગી। કાલે મને 2 પુસ્તકો આપ્યા, આરોગ્યસભર વાનગી। ભોજન એવું કરવાનું કે જેની અંદરથી તમને પોષણ મળે। પોષણ મળે એવું ભોજન નથી કરતા, પેટ વધે એવું ભોજન કરીએ છીએ આપણે। પોષણ મળે તેવું ભોજન નહીં, પેટ વધે એવું ભોજન नहीं। आहार का नियम पहला। तो नहाना कैसे चाहिए? पहले नाभि पर पानी, बाद में मुख में पानी, बाद में चेहरे पर, बाद में मस्तक पर, ऐसे नहाने का क्रम है। जिनके नख बड़े बड़े हो जाते हैं वो धीरे धीरे उसकी मानसिकता तामसी बन जाती है, इसीलिए नख बड़े रखने नहीं चाहिए। कोई बहनों राखते हो तो तंता राखजो, मारो कोई वांधो नहीं, पण चीड़ियो स्वभाव थी जाए नख मोटा राखवाथी। जेना दांत गंदा, नख गंदा, वाळ गंदा, तेनाथी राहु ने केतु नाराज थाय अने तेने पीड़ा मळे। તેથી थोड़ा आरोग्य का ध्यान रखिए आप। मैंने बहुत बार कहा आपके पास दुनिया की संपत्ति, मान सम्मान, पद पदवी, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज से संपूर्ण सावधान, जहां तहां जहां वहां नहीं। कभी कभार ठीक है, खा लिया, कोई इंजॉय मेहमानों के लिए और कोई पार्टी है, लेकिन અને ઘણી બહેનો તો નક્કી થયું કે રવિવારે ઘરે જમવાનું જ ન હોય, એમ રવિવારે બહાર જ, આજે રવિવાર છે ને, हाँ आज रविवार છે, बोलो बाहर જ જમવાનું नहीं। इसलिए मेरे शिव महापुराण ग्रंथ में भोजन के बारे में बहुत कुछ कहा है, आहार के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। तो भगवान महादेव का रूप स्वरूप सबसे जुदा है, ध्यानस्थ देवता है, ध्यान में रहने वाला शिव
देवता इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आहार विचार बहुत महत्व की बात है। सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज नारद जी बृहस्पति देव भगवान महादेव के पास गए और शिव जी को कहा कि बाबा आपकी विवाह पत्रिका है, सुंदर देवी देवताओं को सबको आमंत्रित करिए, आपके विवाह में सब मान सम्मान के साथ यहाँ कैलाश में सबका आगमन हो और हम सभी आपको लेकर प्रजेश नगर में जाएंगे और सुंदर आपका विवाह दक्ष पुत्री सती के साथ होगा। स्वयं भगवान महादेव ने कहा कि सप्तऋषि गर्गाचार्य नारद जी बृहस्पति, विश्व में जितने देवता है, देवी है, देवगण है, सबको आमंत्रित करिए। मेरा तो परिवार कोई है ही नहीं, न माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, कोई नहीं, अकेला है शिव। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि शिव तत्व एटले क्या? शिव तत्व एटले पूरा ब्रह्मांड, वही शिव। जो कुछ देख रहे वो भी शिव, जो कुछ देख नहीं सकते वो भी शिव, जो सोच रहे वो भी शिव, जो सोच नहीं सकते वो भी शिव, जो बोलते हैं वो भी शिव, जो बोल नहीं सकते वो भी शिव। सब कुछ शिव ही, जड़ चेतन गगन अगन आकाश प्रकाश, सब कुछ सरिता सागर पेड़ पहाड़ जीव जंतु सब शिव ही शिव है। शिव कोई देव नहीं, शिव पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य, अनंत ब्रह्मांड, उसको कहते हैं शिव। इसीलिए कहा न, गगन में तू, अगन में तू, आकाश में तू, प्रकाश में तू, सरिता में तू, सागर में तू, पेड़ में तू, पहाड़ में तू, जड़ में तू, चेतन में तू, देवताओं में तू, दानों में तू, मानव में तू कहाँ नहीं है? जिधर देखो इधर तू ही तू है। जहां जहां नजर मारी फरे छे यादी भरी छे आपने। ईश्वर को देखने के लिए हमारी दृष्टि चाहिए, इसलिए शिव तत्व उसको कहा गया है, पूरे ब्रह्मांड को शिव तत्व कहते हैं।